سوال نمبر 1، اسلامی شریعت کے حساب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ کتنے دن تک ناراض رہ سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 3 دن، بی 5 دن، سی 7 دن، ڈی 11 دن۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 3 دن۔ اسلامی شریعت کے حساب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ 3 دن تک ناراض رہ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کون ہے جس کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں اے منافق، بی مشرک، سی زنا کرنے والا، ڈی صحیح جواب کا انتظار۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مشرک۔ مشرک کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3، جب شام کا اندھیرا ہونے لگے تو بچوں کو گھر میں کیوں روکنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اندھیرے سے بچے ڈر جاتے ہیں، بی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سی جن اور شیطان جاتے ہیں، ڈی صحیح جواب کا انتظار۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی جن اور شیطان جاتے ہیں۔ جب شام کا اندھیرا ہونے لگے تو بچوں کو گھر میں روکنے چاہیے کیونکہ جن اور شیطان اس وقت جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ان میں سے وہ کون سی آواز ہے جس کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے؟ آپ کے آپشن ہیں اے فرشتوں کی آواز، بی میت کی آواز، سی جناتوں کی آواز، ڈی یاجوج ماجوج کی آواز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی میت کی آواز۔ میت کی آواز اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ سوال نمبر 5، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کس کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شرابی کے لیے، بی ماں باپ کی نافرمانی کے لیے، سی زنا کرنے والے کے لیے، ڈی بخیل یعنی کنجوس کے لیے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بخیل یعنی کنجوس کے لیے۔ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بخیل یعنی کنجوس کے لیے تباہی کی دعا کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، ان میں سے کون سی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے روز عطا کی گئی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے آیت الکرسی، بی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سی سورہ کاف کی آخری 2 آیتیں، ڈی سورہ فاتحہ کی ساری آیتیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے روز عطا کی گئی تھیں۔ سوال نمبر 7، سورہ القاریہ میں جس حاویہ کا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دیکھتی ہوئی آگ، بی
दोज़ख का अजाब, सी दोज़ख का खाना, डी कब्र का अंधेरा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए, देखती हुई आग। सूरह अल कारिया में जिस हाविया का जिक्र है वो देखती हुई आग है। सवाल नंबर 8, जब कोई मुसलमान एक नेकी करता है तो मैक्सिमम उसको कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 नेकियों का, बी 70 नेकियों का, सी 700 नेकियों का, डी 7000 नेकियों का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 700 नेकियों का। जब कोई मुसलमान एक नेकी करता है तो मैक्सिमम उसको 700 नेकियों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 9, इनमें से किसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुरा कहने से मना फरमाया है? आपके ऑप्शन हैं ए बुराई करने वाले को, बी शैतानी फितरत को, सी माल वाले को, डी जमाने को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी जमाने को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमाने को बुरा कहने से मना फरमाया है। सवाल नंबर 10, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? आपके ऑप्शन हैं ए वालिदैन का, बी शौहर का, सी भाई बहन का, डी औलाद का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शौहर का। औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। सवाल नंबर 11, जहन्नुम में सबसे ज्यादा कौन जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए मर्द, बी औरतें, सी जिन्नात, डी चरिंद और परिंद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी औरतें। जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। नाज़रीन इकराम, हदीस पाक का मफहूम है कि औरतें अपनी ज़बान यानी हर बात पर कसरत से लान तान करना और नाशुक्री की फितरत की वजह से कसरत से जहन्नुम में जाएंगी। लिहाजा इन्हें चाहिए कि इन दो कसरतों से बचें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। सवाल नंबर 12, रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म किस सूरा में दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरा बकरा में, बी सूरा नास में, सी सूरा तौबा में, डी सूरा नूर में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरा बकरा में। सूरा बकरा में रमजान के रोजे रखने का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 13, हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद किस मुसलमान बादशाह ने रखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए सुल्तान महमूद गजनबी ने, बी शहाबुद्दीन गौरी ने, सी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
डी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शहाबुद्दीन गौरी ने। हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद शहाबुद्दीन गौरी बादशाह ने रखी थी। सवाल नंबर 14, अल्फाज के एतबार से कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सूरा इखलास, बी सूरा तौबा, सी सूरा कौसर, डी सूरा नास। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरा कौसर। अल्फाज के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सवाल नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि घर में तोता कबूतर पालना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी गुनाहगार होगा, डी सवाब होता है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। घर में तोता कबूतर पालना जायज़ है। नाज़रीन इकराम, घर में तोता कबूतर पालना जायज़ है। शौकिया तौर पर ये तोते, तीतर, बटेर और कबूतर वगैरह हलाल परिंदों को पालना चंद शराइत के साथ जायज़ है। नंबर 1, उनके दाने पानी में कमी न होने दें, यानी वो भूखे प्यासे न रहें। दाना पानी के मुताल्लिक यहाँ तक ताकीद फरमाई गई है कि दिन में 70 बार देखा जाए। नाज़रीन इकराम, नंबर 2, उड़ाने के लिए न पालें कि उड़ाना एक किस्म का लहू है जिसकी शरअन इजाज़त नहीं। नेज़ उड़ाने में उमूमन कई नाजायज़ काम होते हैं। मसलन छतों पर चढ़कर उड़ाते हैं जिससे दूसरों की औरतों की बेपर्दगी होती है। उड़ाने में कंकरियां वगैरह फेंकी जाती हैं जिससे किसी के जानी और माली नुकसान का अंदेशा होता है। उड़ाने में जुए वगैरह की बाजियां लगाई जाती हैं। भूखे प्यासे परिंदों को घंटों उड़ाया जाता है। नीचे आना चाहे तो आने नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।